खरा सांगकु बात भय। सतर्क रुहंतु अभिभावक। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह एबे सारा ओडिशा को कलबल करुछि। पारद 40 डिग्री उपरे रहुथिबा बेले एही तातीर सबुठारु बड़ प्रभाव पडुछि कोमलमती शिशुंक उपरे। विशेष करी जेउ शिशु माने पूर्वरु अप्सरा बा बात समस्यार आक्रांत सेमानंक पाई एही समय अग्नि परीक्षा सदृश। डाक्तरंक अनुଯାୟୀ शरीरर तापमात्रा वृद्धि पाइबा एवं अंशुघात परिस्थिति बात मारिबार मुख्य कारण साजिथाय। अत्याधिक गरम जोगु शिशु मानसिक चाप सहुथिबारु मस्तिष्क उपरे एहार प्रतिकूल प्रभाव पड़िथाय। एभली स्थिति रे किपरि सतर्क रहिबे अभिभावक किछि तथ्य उपरे पकांतु नजर। सकाळ 10 टारू संध्या 4टा पर्यंत शिशु को बाहर को छाड़ंतु नहीं। शिशु को प्रचुर परिमाण रे पानी, ओआरएस और तोराणी पीवा को दियंतु। सबुबेले हालुका सूता पोशाक पिंधांतु। डाक्तर देइथिबा बात औषध नियमित खांतु। Children are, not miniature adults. They can be predisposed to more of heat. They can get more dehydration, and they have developing brain and developing organs. So they are more vulnerable. Yes. So yes, prevention is always better than cure. So we should ensure that they have good hydration. So small, frequent giving fluids which are not heavy in sugar content and all. And so they can have any normally fluids can be given to them more frequently, and they should be their school and all, they should have well ventilated and cool environment should be maintained in that area, and they should prevent any outdoor activities. You can have some physical activities inside in the halls and all as well. So that is one thing. But these children can have problems if they are having some other underlying problem. If somebody has epilepsy, they may have more seizures during that time. Somebody with cerebral palsy, somebody with having heart disease, or somebody having any kidney problem or any other problem, they can have aggravation. So they have to be particularly careful, and especially infants, small babies and infants will be very much important to see, because they don't feel they cannot manifest their thirst, so they have to be given fluids and all have to be given round the clock and keep in a cool environment. And these children should not go outdoors and wear loose comfortable clothes, not something tight fitting and all. And if the child is becoming any irritable, and having any breathing fast, or having any pulse rate which is increasing, and if or somebody is getting a bit sleepy or drowsy, they should just try and see that they should start more fluids and all. If the temperature is rising, they should take consultation, because it can lead to heat exhaustion and that heat stroke, so we should prevent it going onward. Yeah, actually besides this, they are also predisposed to many infections and contamination of food, so they end up having a lot of diarrheas and all that is there. And where those children who are having any reactive airway disease or any asthma or something, and with the air pollution which is not completely gone away, it is a bit less but it is still there, so that can compound and they may have exacerbation of asthma which can be seen. Some of the children who have chronic kidney disease may develop because of hypotension, and developing dehydration and hypotension, may have acute kidney injury. Somebody may be predisposed to develop kidney stones later on. एभली समय रे पिलांको खाद्यपेय उपरे स्वतंत्र नजर देवा जरूरी। शिशु को बाहरर तेल बा मसला युक्त खाद्य दियंतु नाही। जदि शिशु को हठात बात मारे तेबे भयभीत न होई तांकु तुरंत एक ठंडा स्थान को नहीं जांतु एवं शरीर को ओदा कपड़ा रे पोछि दियंतु। मने रखंतु, शरीरर तापमात्रा नियंत्रण रे रहिले बात आसीबार संभावना अनेकांश रे कमी जाए। जदि शिशु अधिक समय धरी निस्तेज रहे तेबे विलंब न करी तुरंत विशेषज्ञ परामर्श नियंतु। सामान्य असावधानता शिशु पई मारात्मक होई पारे। We have to ensure food safety. जो कट फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा बाहर से रोड साइड से लेके नहीं खाने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर फ्रूट्स हमने काट के रख दिए हैं 2 घंटे हो गए हैं तो फिर वो हमारे लिए अनसेफ हो जाते हैं, तो उनको नहीं खाना है। और जो भी आपने नींबू पानी लेना है या अगर कुछ भी ड्रिंक बना रहे हैं तो वो फ्रेश बनाइए,
जिससे कि एक तो शेल्फ लाइफ होती है सभी फूड्स की, और साथ ही साथ जब हम बना रहे हैं तो जो भी सरफेस है, हमारी इन्वायरमेंट है, वो क्लीन होनी चाहिए, कि जिससे कि कंटेमिनेशन ना हो जाए। कई बार क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है कि हमारे जो बर्तन है वो साफ नहीं है, उससे भी कुछ ऐसा उसमें आ सकता है कि जो नुकसान कर सकता है। तो इन चीज फूड सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। जब हम फल या सब्जी मार्केट से खरीद रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि ये देखना कि वो फर्म हो, राइप हो, और उसमें कोई ब्रूसेस ना हो। अगर वो कटा हुआ है तो उससे ये होगा कि उसमें चांसेस है कि अंदर कुछ क्रॉस कंटेमिनेट हो जाए। तो जब हम खरीदने जा रहे हैं तब हमको सिलेक्शन में भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आईवी फ्लूइड देते हैं उनको, जो फ्लूइड देते हैं या जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो उनको थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर उनको दिया जाता है, ताकि वो बॉडी का कोर टेम्परेचर ठंडा हो कम हो सके धीरे धीरे। दूसरा होता है कि उनको नाक से पेट में नली डालते हैं, क्योंकि मुंह से वो अनकॉन्शियस स्टेज में होते हैं ऑलमोस्ट, तो नाक से जो नली डालते हैं पेट में, तो उससे हम ठंडे लिक्विड्स देते हैं, वाटर मेनली, ताकि उससे भी कोर टेम्परेचर कम हो। तीसरा है कि कोल्ड ब्लैंकेट्स होते हैं जो उनको ऊपर डाला जाता है, ताकि वो धीरे धीरे वो बॉडी के टेम्परेचर को, अगर 106 या 7 है तो धीरे धीरे उस बॉडी के टेम्परेचर को कुछ घंटों में, मिनटों में नहीं, हम घंटों में धीरे धीरे उसको नॉर्मल पे लेके आएँ और उसको धीरे धीरे वहीं पे रखें, क्योंकि ये एक बार हाई होता है तो फिर वो हम सब एकदम से हटा देंगे तो फिर हाई हो सकता है। तो उसको धीरे धीरे सस्टेन करके रखना होता है ताकि वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आ जाए। खरा दिने सतर्कता ही श्रेष्ठ चिकित्सा। छोट पिलांकु गरमरु सुरक्षा देवा सह एक शांत तथा ठंडा परिवेश जोगाई देवा आवश्यक।